हाँ जी, हमने कर लिया था इनहेलेशन, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में रिपीट करवा देता हूँ। इनहेलेशन, प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एयर इनसाइड, और आपको बताया था कि इनहेलेशन में क्या होता है। इन इनहेलेशन दिस diaphragm, this is the diaphragm that move downward and ribs move outward, so volume inside the thoracic cavity increases. वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. सो एयर फ्रॉम आउटसाइड रसेस फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट टू एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, then nasal cavity to internal nostril, pharynx to larynx to trachea to bronchi to bronchiole और bronchiole to alveoli, ultimately alveoli में enter कर जाते हैं. And inside the alveoli exchange of gases take place. What happen inside alveoli when this gas air enter into the alveoli? This is the one of alveoli. Oxygen diffuse inside the blood and carbon dioxide diffuse out of the blood, and then exhalation take place. मतलब यहाँ exchange of gases होते. क्यों होता है ऐसा? Because inside blood there is less concentration of oxygen, and air which is present outside the blood that has high concentration of oxygen. And we know that in diffusion always the particles, whether solid, liquid or gases, they move from high concentration to low concentration. Here inside the alveolar gap, यानी कि इसके अंदर there is high concentration of oxygen, and inside the blood there is low concentration of oxygen, so oxygen diffuse inside the blood. And inside blood there is high concentration of carbon dioxide as compared to the environmental air, so carbon dioxide diffuse out from the blood. Like that the exchange of gases take place. आपकी नॉलेज के लिए इसमें बता रखा है कि 97% ऑफ ऑक्सीजन जब हम यहाँ पे इनहेल करते हैं, 97% ऑफ ऑक्सीजन, जितनी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है उसका 97%, that combine with hemoglobin to form oxyhemoglobin, and 3% of oxygen that dissolve into the blood plasma, because oxygen is little soluble in water also, तो सो 3% अप्रोक्सीमेटली 3% तो वो किस में डिजोल्व हो जाती है, ब्लड प्लाज्मा में, और 97% जो है किसके साथ कंबाइन करती है, हीमोग्लोबिन के साथ, टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन. एंड देन एक्सहेलेशन टेक प्लेस, जब एक्सचेंज हो जाता है. व्हाट हैपन, द डायफ्राम मूव अपवर्ड, रिब्स मूव इनसाइड, सो volume inside the thoracic cavity decreases and pressure increases, and due to increase in pressure the air passes out through the same path from alveoli to bronchiole, bronchiole to bronchi, bronchi to trachea to larynx to pharynx, same path in which it was entered, and internal nostril, then nasal cavity, external nostril, and that is released in outer environment. Like that, under normal condition approximately 18 times, 15 to 18 times we breathe in, but under emergency situation that breathing rate increases, maybe up to 25. ये हमने पहले भी कर लिया था. अब आप देखिए, when oxygen is absorbed inside the blood, then after that blood carry this oxygen to tissues, and inside the tissue what are there, inside the tissue there are cells. टिश्यू में क्या है, सेल्स हैं. एंड द एयर मीन्स ऑक्सीजन दैट इज डिफ्यूज्ड फ्रॉम ब्लड टू सेल, ब्लड से सेल में डिफ्यूज हो जाती है. मतलब व्हेन ब्लड रीचेस टू द टिश्यू लेवल पे पहुंचता है. मैं सिंपल बात बता रहा हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ उसके बाद. व्हेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द लंग्स, देन ब्लड कैरी दैट oxygen to tissues,
when blood reaches to the tissues, then again exchange of gases take place. फिर दोबारा एक्सचेंज होता है. बट वो एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ब्लड से जो एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड जो है लंग्स से, जिसने एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुई लंग्स में, और लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बाद वो ब्लड जाता कहाँ है? यू नो, दैट गोज टू हार्ट, और फिर हार्ट से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है. डायरेक्ट टिश्यूज में नहीं जाता है. वहाँ से कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा. हार्ट फिर पंप करेगा, देन इट रीचेज टू द. अब दैट ब्लड मूव टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी and reaches ultimately to the tissues, and we know that inside the tissue the blood capillaries are very very fine, बहुत fine होते हैं. Here the blood which is coming from heart, or we can say which is coming from lungs, that consists of high concentration of oxygen. जो लंग्स से, हार्ट और हार्ट से फिर जो ब्लड आया है, दैट हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है. एंड व्हेन इट रीचेज टू द टिश्यू सेल्स, इनसाइड द टिश्यू सेल देयर इज लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का यूटिलाइज हो जाता है. तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है, एंड जो बॉडी टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनके अंदर जो है क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज लो. सो ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड टू सेल्स. एज ब्लड रीचेज टू द टिश्यूज, it divide into very very fine capillaries, and in this blood there is high concentration of oxygen and low concentration of carbon dioxide. आपको ये बात बतानी पड़ेगी. जब हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स में कर रहे हैं, तभी आप बताएंगे कि ब्लड में किसकी कंसंट्रेशन हाई है और किसकी लो है. मतलब वहाँ पे क्या थी? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो थी ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड की हाई थी. और दैट्स वाई ऑक्सीजन तो क्या होती है? डिफ्यूज इन हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट हो जाती है फ्रॉम ब्लड. अब वही ब्लड जब टिश्यू सेल तक पहुंचता है तो क्या होता है? इनसाइड द ब्लड देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज दैट ब्रॉट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. बट इनसाइड द टिश्यू सेल व्हाट इज देयर? अपोजिट है इसका. हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. सो ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द ब्लड, ऑक्सीजन डिफ्यूज इनसाइड द टिश्यू सेल्स. ब्लड सेल में एंटर नहीं करता है, तो दैट्स वाई सिर्फ डिफ्यूजन होता है. ब्लड तो ये ब्लड कैपिलरी के अंदर रोटेट कर रहा है. आप ये समझ लीजिए, दिस इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन कि ये ब्लड कैपिलरी आ रही है, एंड व्हेन इट रीचेज टू द टिश्यू इट बिकम वेरी फाइन. तो ये फाइन ब्लड कैपिलरी है. इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है. व्हेन इट रीचेज टू द टिश्यू, ये सपोज करो ये टिश्यू है, ये टिश्यू के सेल है, टिश्यू में सेल ही होते हैं और क्या है, तो ये ब्लड कैपिलरी अलग रहेगी. इट डू नॉट एंटर इनटू द सेल्स, बट इसकी वॉल के साथ टच होंगे. इनसाइड द सेल्स व्हाट इज देयर? लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो फ्रॉम ब्लड ऑक्सीजन डिफ्यूज इनसाइड द सेल, and from cell carbon dioxide diffuse into the blood. Exchange of gases take place again, and blood carry this carbon dioxide to the lungs again in lungs exchange of gases take place. This is the transportation of gases by the blood and exchange of gases at tissue level. टिश्यू लेवल पे इसका एक्सचेंज. सिंपल सी बात आपने वो करनी है कि ब्लड आफ्टर एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स कैरी द ऑक्सीजन and reaches to the
डायरेक्ट आप बता दीजिए, आपको हार्ट की बात यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं. रीचेज टू द टिश्यू सेल्स एंड व्हेन इट reaches to the tissue, the blood capillaries become very fine, and in this blood there is high concentration of oxygen and low concentration of carbon dioxide. But inside the cell there is low concentration of oxygen and high concentration of carbon dioxide. So from blood oxygen diffuse into the cell, and from cell carbon dioxide diffuse into the blood, and blood carry this to the lungs. This is the exchange of gases which take place inside the cell. जो सेल के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो इतनी सी बात आपने नोट करनी है. एंड दिस इज वेरी फाइन फिगर टू शो. आपने एक सिंपल एक क्या दिखाना है कि ये ब्रीदिंग से हमने ऑक्सीजन अंदर ली, ये ब्रीदिंग का सिस्टम दिखा रखा है, और वो कहाँ एंटर कर गया, ब्लड में. मतलब ये आप एक तरह से ब्रीदिंग सिस्टम शो कर रखा है कि ब्रीदिंग से ऑक्सीजन ली और वो ऑक्सीजन कहाँ आ गई, ब्लड में. ब्लड उसको कहाँ ले गया, सेल्स में. सेल में फिर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, ऑक्सीजन एंटर कर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, फिर ब्लड उसको वापस कहाँ ले आया, लंग्स में. दिस इज अ वर्किंग मॉडल है, इसका शो कर रखा है. ये ऊपर वाला सिस्टम आप समझ लीजिए लंग्स का है, ये क्या है, टिश्यूज का है, और ये ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है. इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आता है. सारी चीज़ें रिटर्न हैं. ऑक्सीजन ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन आती है, और वो ऑक्सीजन कहाँ आती है, ब्लड में. ब्लड उसको कहाँ ले जाता है, टिश्यू सेल तक. टिश्यू सेल के अंदर क्या है, मतलब यहाँ पे ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है. एवरीथिंग इज रिटर्न हियर. टिश्यू सेल ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज, क्योंकि ऑक्सीजन आएगी तो वो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीडेशन करेगी, एनर्जी रिलीज होगी, वो रेस्पिरेशन में हम करेंगे आगे. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में रिलीज होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड लेके ब्लड कहाँ ले जाता है, उसको लंग्स में वापस एक्सचेंज कर देते हैं, और हम बाहर निकाल देते हैं, ब्रीद आउट कर देते हैं. तो ये मॉडल शो कर रखा है. दिस मॉडल इजी टू अंडरस्टैंड, आपको पूरी चीज़ वर्किंग को समझाने के लिए इज कन्वीनियंट मॉडल है. एंड देन अब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गए, सेल के अंदर ऑक्सीजन आ गई. देन व्हाट हैपन, नाउ रेस्पिरेशन टेक प्लेस. अब रेस्पिरेशन होती है. अब एक चीज़ इसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन और दे रखी है आपको, ये दे रखी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमने ऑक्सीजन की तो बात कर ली कि ऑक्सीजन जो है 97% हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके और 3% प्लाज्मा में डिजोल्व होके क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है. हाउ डज द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड. 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रेवल करती है, ट्रांसपोर्ट होती है. 70% मतलब मैक्सिमम. सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि किस में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लड प्लाज्मा के अंदर, तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करती है. 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद हीमोग्लोबिन, एंड 70 + 23 93 होगी. रेस्ट ऑफ 7% कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में, वो भी प्लाज्मा के अंदर होता है. मतलब मेनली प्लाज्मा में डिजोल्व होके ट्रांसपोर्ट होती है. और प्लाज्मा में 70% तो सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, 7% कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में, एंड रेस्ट ऑफ 23% किस में, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर ट्रांसपोर्ट होते हैं. दिस इज फॉर योर नॉलेज. दिस इज द अनदर फिगर which is shown how the exchange of gases take place. बिल्कुल वही है. ये ब्लड कैपिलरी है, इसके अंदर वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल है. दीज आर द बॉडी सेल्स, ये बॉडी सेल हैं. और ये देखिए यहाँ पे अगेन वही फिगर शो कर रखी है. इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, मतलब ऑक्सीजन एंटर कर रही है. यहाँ पे ये देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है. ये कार्बन डाइऑक्साइड देखिए सेल से इसमें आ रही है, और यहाँ से फिर इसके अंदर एंटर आ जाएगी. मतलब इस तरह से शो कर रखा है, और कुछ नहीं है. वही चीज़ आप उसी मॉडल को शो कीजिएगा जो पहले आपको बताया है, वो ज़्यादा बेटर है. ये तो एक वैसे फिगर शो की गई है. नाउ रेस्पिरेशन. अब सेलुलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन एक ही बात है, बिकॉज रेस्पिरेशन सेल में ही होती है. दैट्स वाई उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहें चाहे रेस्पिरेशन कहें. हाउ डज
इट टेक प्लेस। रेस्पिरेशन का मीनिंग हमें पता है क्या? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? Because the energy released from respiration that is used by the cell, that is used by the organism to remain alive, for carry out various function. बॉडी में जितनी एक्टिविटी होती है उनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? रेस्पिरेशन से ऑब्टेन होती है। Respiration that is divided into two categories. One is aerobic respiration and another is anaerobic respiration. Aerobic respiration is what? इस क्वेश्चन को हम यूं भी वो कर देते हैं, name the various ways by which the glucose is oxidized in the cell. NCERT में क्वेश्चन है ये, वो यही है aerobic and anaerobic respiration. Since cellular respiration that is of two type, aerobic respiration and anaerobic respiration. आपको कल भी बताया था कि aerobic respiration का मतलब क्या है? Aerobic respiration means oxidation of food in sufficient supply of oxygen, in presence of sufficient oxygen. Oxygen की presence में, sufficient amount of oxygen की presence में जो है food की oxidation, that is known as aerobic respiration. क्या होता है? How does it take place? सबसे पहले आप देखिए, when digestion of food take place in the intestine, will I absorb that food and that food enter in blood, and blood carry that food and reaches to the tissue cells, and food is diffused out from blood to सेल। हमने डाइजेशन में किया था ना कि जब फूड डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट के बाद फूड क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब हो, कहाँ एब्जॉर्ब होता है वो? विलाई उसको एब्जॉर्ब करते हैं। विलाई एक्चुअल में कहाँ जाता है वो? एक्चुअली दैट एंटर इनटू ब्लड, और ब्लड उसको कहाँ ले आता है? टिश्यू सेल्स तक। अब सेल में आ गया, सेल में ग्लूकोज आ गया, और ब्रीदिंग से, एक्सचेंज ऑफ गैसेस से ऑल्सो ब्लड कैन ब्रिंग ऑक्सीजन हियर। तो अब सेल के अंदर ग्लूकोज भी आ गया और सेल के अंदर क्या होगी? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा। हाउ डज इट हैपन्स? एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कीजिए पहले हम, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें। द फूड मीन्स ग्लूकोज विच एंटर इनटू द सेल इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में that glucose which is in cytoplasm, साइटोप्लाज्म में जो है आते ही उसका क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस ऑफ दैट ग्लूकोज टेक प्लेस। उस ग्लूकोज की क्या होगी? ग्लाइकोलाइसिस होगी। मीन्स दैट ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू सिंपलर फॉर्म, एंड दैट इज पायरुविक एसिड और पायरुवेट, दोनों ही नेम देते हैं, चाहे आप उसको पायरुवेट कह दीजिए चाहे पायरुविक एसिड कह दीजिए। that convert into pyruvate or pyruvic acid, and no oxygen is required, and this process take place inside cytoplasm only. ब्लड सबसे पहले ग्लूकोज सबसे पहले कहाँ एंटर करेगा? साइटोप्लाज्म में आएगा। साइटोप्लाज्म में आते ही उसकी क्या हो जाएगी? ग्लाइकोलाइसिस। मीन्स वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ दिस पायरुवेट एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। तो पायरुवेट का एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, एंड द ऑक्सीजन इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन, दैट कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट की ऑक्सीडेशन कॉज करती है। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनेंगे, और ये पायरुवेट मॉलिक्यूल का एंटर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन करेगी and convert it into carbon dioxide, water, and net energy is released. तो एनर्जी रिलीज होती है। ये कंप्लीट प्रोसेस है। 2 ATP तो बाहरी ग्लाइकोलाइसिस में ही प्रोड्यूस हो जाती है, बाकी इसके अंदर
तो टोटल 38 एटीपी फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है। 2 स्टेप्स हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्लूकोज विच एंटर इनटू ब्लड इन साइटोप्लाज्म इट कन्वर्ट इनटू पायरूवेट एंड नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ यूज नहीं होता उसका। देन पायरूवेट एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया एंड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेशन ऑफ दैट फूड टेक प्लेस। उस पायरूवेट की यानी कि ऑक्सीडेशन होती है एंड एनर्जी इज रिलीज एंड ऑल्सो दैट कन्वर्ट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज्ड आउट, हम एक्सचेंज ऑफ गैसेज में कर चुके हैं। दिस इज द aerobic respiration and this energy is utilized to carry out various activity inside the cell and that's why mitochondria is known as powerhouse of the cell, इसीलिए बोलते हैं उसको पावर हाउस। अब रही बात एरोबिक, तो ये ठीक चाहे प्लांट हो एनिमल सेल हो सब में एक ही तरह से होते हैं। बट इफ नो ऑक्सीजन or insufficient oxygen is available, then what happen? Anaerobic respiration take place. Anaerobic respiration means the respiration which take place in absence of oxygen, that is anaerobic respiration. And product of anaerobic respiration in animal cell and plant cell are different. एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट सेम है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होगा, 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होगी। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट प्लांट्स एंड एनिमल सेल में क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। इन प्लांट सेल जस्ट लाइक यीस्ट सेल का एग्जांपल हमारे सिलेबस में है। फर्स्ट वही सेम थिंग, ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म कन्वर्ट इनटू पायरूवेट। फॉर्मूला कोई ज़रूरी नहीं है आपने लर्न करना है, आप नेम सिंपली पायरूवेट नेम कीजिएगा। आपकी नॉलेज के लिए फॉर्मूला ये दे दिया है, 10th क्लास में एसेंशियल नहीं है। ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरूवेट, पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी पायरूविक एसिड कह सकते हैं आप। एंड देन इफ नो ऑक्सीजन इज अवेलेबल, देन इनसाइड साइटोप्लाज्म ओनली that pyruvate convert into ethyl alcohol or it is also named as ethanol, ethanol भी कह देते हैं। हाँ जी, इसका जब जो आप रीड करेंगे वो नेम इथानॉल ही रीड करेंगे। IUPAC नेम होता है, मतलब एक सिस्टम है नेम का, तो इथानॉल नेम है इसका। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज एंड ओनली 2 ATP एनर्जी इज रिलीज्ड। ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म कन्वर्ट इनटू पायरूवेट, ये प्रोसेस तो इतनी तो सेम है, ये तो एरोबिक में भी हुई थी। देन इफ नो ऑक्सीजन इज अवेलेबल, देन इन साइटोप्लाज्म ओनली इट कन्वर्ट इनटू इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इज रिलीज, ओनली 2 ATP एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग दिस। इन मसल सेल व्हाट हैपन? सेम ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरूवेट इन साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ये प्रोसेस का नेम क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। ये तो होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ तक तो ऑक्सीजन वैसे भी रिक्वायर्ड नहीं थी, दैट्स वाई एज इट इज प्रोडक्ट चलेगा, ग्लाइकोलाइसिस होगी। नाउ इफ नो ऑक्सीजन इज अवेलेबल और इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इज देयर, क्योंकि एनिमल सेल ब्रीदिंग करते ही हैं तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होती हैं, देन again in cytoplasm only that convert into pyruvate convert into lactic acid, lactic acid में convert हो जाता है and 2 ATP energy is released। अब देखिए प्लांट सेल में क्या प्रोड्यूस होता है? इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड एनिमल सेल में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। ये डिफरेंस है, एंड लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड। Due to production of lactic acid, cramping of muscle take place। cramping of muscle हो जाती है, तो बहुत जैसे हम कोई हैवी वर्क करके आए या हैवी एक्सरसाइज करके आए तो हमारे जो है यहाँ पे पेन होने लग जाता है, बिकॉज मसल सेल जो होते हैं, मसल सेल टाइट होते हैं, वहाँ ऑक्सीजन
वहाँ लैक्टिक एसिड, वहाँ रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की, क्योंकि उनको वर्क करना होता है फिजिकल वर्क ज़्यादा करना होता है, और वहाँ पे इन लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, इस करके लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। एंड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड पेन टेक प्लेस, तो पेन कॉज होता है, वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। जब हम रेस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर तो वो पेन रिलीज हो जाता है, बिकॉज जब हम रेस्ट करते हैं तो हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और हम उसी रेट से ब्रीदिंग कर रहे हैं, सेम रेट से ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन जो है सफिशिएंट अवेलेबल होती है, और वो ऑक्सीजन फिर इस लैक्टिक एसिड को क्या कर देती हैं, ऑक्सीडाइज करके सिंपलर में कन्वर्ट कर देती हैं, तो पेन रिलीज हो जाता है। देखिए ये वही इकट्ठी प्रोसेस है, द 3 डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज। आप चाहे उनको अलग अलग करके तीनों इक्वेशन को लिख दो, चाहे इकट्ठे करके लिख दो। ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म कन्वर्ट इनटू पाइरुविक एसिड, आपको पहले बताया था कि पाइरुवेट कहो चाहे पाइरुविक एसिड, और इसको, इस प्रोसेस को नेम क्या देते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। Glycolysis take place, and then pyruvic acid convert into, if oxygen is available, carbon dioxide, water and energy, and if no oxygen is available, then in plant cell it convert into ethanol, carbon dioxide and energy, and if in muscle cell lactic acid and energy। आप इस तरह से भी इसको शो कर सकते हैं। दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दीज टू आर एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, देखिए प्लांट्स के अंदर कोई भी लिविंग सेल हो, रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर ऑल, एंड रेस्पिरेशन में ऑलवेज ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, चाहे वो कोई भी सेल हो। इन प्लांट सेल ऑल्सो सेम प्रोसेस टेक प्लेस, बट इन एनिमल्स देर आर organs, different type of organs. In human being complete respiratory system is there. In higher animals also complete respiratory system are there. But in plants there is system is somewhat different. थोड़ा सा अलग होता है, अलग वे से गैसेस एक्सचेंज होते हैं. It is totally depend on the diffusion. प्लांट्स के अंदर जो है 3 मेजर मोड्स हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के, चाहे वो ऑक्सीजन है चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है. एक कि जो वेरी स्मॉल प्लांट होते हैं, सिंपल प्लांट होते हैं, उनके अंदर तो सिंपली डिफ्यूज़न से होते हैं. जैसे अमीबा के अंदर भी सिंपल एनिमल है, उसमें भी डिफ्यूज़न से होती है कि आउटर एनवायरनमेंट से एयर डायरेक्टली डिफ्यूज इन द सेल्स, और देयर इज़ नो सिस्टम, कोई सिस्टम नहीं है. बट इन हायर प्लांट्स उनके अंदर जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स. किसके थ्रू होती है? स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स के थ्रू होती है. स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन लीव्स एंड ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एंड लेंटिसेल्स दीज आर प्रेजेंट इन स्टेम्स, रूट्स, ठीक है ना, ओल्डर पार्ट्स, डेड पार्ट्स, तो उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो सिंस respiration in simpler plant by simple diffusion, and in complex plant either by stomata and either by stems, lenticels. तो स्टोमेटा से या फिर लेंटिसेल से होती है. लेंटिसेल्स मेनली कहाँ होते हैं? रूट्स एंड स्टेम्स के अंदर होते हैं, जहाँ पे डेड सेल ज़्यादा होते हैं. और ग्रीन पार्ट जहाँ लिविंग होते हैं उनमें मेनली क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं. अब आप देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स कैसे होती है. इन प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन प्रोसेस. मेन तो डिफ्यूजन ही होता है.
there is high concentration of oxygen outside. in night time हम बात करें, when there is no photosynthesis, then concentration of oxygen is higher outside as compared to the inside of cell. So air, oxygen diffuse inside it and carbon dioxide is diffused out. And in photosynthesis क्या होता है, carbon dioxide is absorbed because inside the cell concentration of carbon dioxide is low as compared to outside, so carbon dioxide diffuse inside it. And as a result of photosynthesis oxygen produce होती है, so high concentration of oxygen is there inside the cell, तो सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट होती है. रेस्पिरेशन में ऑलवेज ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. फोटोसिंथेसिस में अपोजिट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है एंड ऑक्सीजन रिलीज होती है. फोटोसिंथेसिस ओनली टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and respiration take place all 24 hour. ठीक है ना. दिन में फिर क्या होता है, आप ये देयर में भी ए क्वेश्चन कि अगर उनको कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से रिलीज करते हैं और फोटोसिंथेसिस में एब्जॉर्ब करते हैं, इसी तरह ऑक्सीजन का फोटोसिंथेसिस में रिलीज करते हैं और रेस्पिरेशन में एब्जॉर्ब करते हैं, देन हाउ इट इज़ बेनिफिशियल. एक्चुअल में क्या है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज वेरी वेरी स्लो, बहुत कम है, एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट है. सो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर respiration is very less and amount of oxygen released during photosynthesis is very very large. So that's why net amount of oxygen is released and net amount of carbon dioxide is absorbed. This is the way. देखिए इन लीव्स हम बात करें, हर एक की हमने तीनों की वो करना है, रूट्स में, स्टेम्स में एंड लीव्स में हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस. मैं एक्सप्लेन यही कर देता हूँ. रूट्स एंड स्टेम की बात कर लेते हैं हम पहले. इन रूट्स एंड स्टेम्स मेनली डेड सेल आर देयर एंड रूट हेयर्स, रूट्स में करें तो रूट हेयर्स आर इन कॉन्टेक्ट ऑफ सोइल पार्टिकल्स and between the soil particle there is air, oxygen present होते उसमें, and there is a high concentration of oxygen outside as compared to the inside of the cell. So oxygen diffuse inside it. तो इन रूट्स हेयर में, रूट हेयर्स में जो है ऑक्सीजन क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है. एंड दिस ऑक्सीजन विच इज डिफ्यूज्ड इनसाइड द inside it, जो इसके अंदर डिफ्यूजन हो जाएगी, दिस ऑक्सीजन इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट सेल्स, अलग अलग सेल में यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाती है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्ट आउट, डिफ्यूज्ड आउट बाय सिमिलर वे. दिस इज थ्रू रूट हेयर. नाउ हाउ थ्रू द lenticels. In old stems there is bark outside, bark होती है, and in bark there are gaps and these gaps are actually lenticels. इन्हीं गैप को हम क्या बोलते हैं, lenticels. And air from means oxygen from outside that diffuse inside because there is high concentration of oxygen outside as compared to the inside of the cell. So a oxygen will diffuse inside and that enter into the different cells, just like ये lenticel के through जो है that enter into it and it diffuse into the different cells, अलग अलग सेल के अंदर एंटर कर जाएगी. एंड इनसाइड सेल एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीडेशन होता है फूड का एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज एंड इन द सेम वे दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज देन डिफ्यूज्ड आउट, इनसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है.
सिंपल बात, कुछ नहीं, मतलब नथिंग टू बी, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स चीज है ही नहीं। आपने सिंपली ये बताना, लेंटिसेल्स दीज आर द स्मॉल पोर्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द डेड सेल एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज इनसाइड इट बिकॉज देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। डिफ्यूजन का तो एक ही प्रोसेस है, एक ही प्रिंसिपल है, वही जो 9th में किया था वही अब है और वही आगे रहेगा कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। आउटसाइड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, लो है, तो सो इट विल डिफ्यूज इनसाइड इट। और ये तो ऑल 24 आवर डिफ्यूज होती रहती हैं, क्योंकि डेड सेल के अंदर क्लोरोफिल है ही नहीं और इनमें क्लोरोफिल नहीं है, तो यहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस होनी नहीं, वो तो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स पार्ट्स में ही होनी है, यहाँ तो सिंपली रेस्पिरेशन ही होनी है, फोटोसिंथेसिस तो है नहीं इनमें। स्टेम सेल्स के अंदर और रूट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं है, वहाँ तो उन्होंने कोई ऐसा सिस्टम करना ही नहीं, वहाँ तो सिंपली क्या जाना है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होनी है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होनी है। प्लांट के अंदर हर पोर्शन में, हर पार्ट में डिफरेंट वेज, मतलब डिफरेंट, आप ये कहिए कि ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता रहता है, नॉट फ्रॉम अ सिंगल पोर्शन, जस्ट लाइक इन एनिमल्स होता है कि हमारे अंदर सिस्टम हम नोज के थ्रू ही होगा, बाकी नहीं होगा, डिफ्यूजन नहीं होता है बॉडी के अंदर। बट हियर इज डिफ्यूजन, ईच एंड एवरी पार्ट डिफ्यूज और एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस सेपरेटली, हर जगह का अपना अपना है। तो लेंटिसेल्स जो प्रेजेंट हैं ओल्ड सेल, ओल्ड रूट्स के अंदर या स्टेम के अंदर, देन एयर डिफ्यूज मीन्स ऑक्सीजन डिफ्यूज इनसाइड इट बिकॉज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है एयर के अंदर एज कंपेयर टू द सेल, सो इट डिफ्यूज इनसाइड। और उससे क्या होगा, दैट रेस्पिरेशन टेक प्लेस, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज देन डिफ्यूज्ड आउट फ्रॉम द सेल थ्रू दीज पोर्स, लाइक दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस। और ये लेंटिसेल्स बार्क के ठीक नीचे होते हैं, वेरी स्मॉल पोर्स होते हैं। लीव्स में क्या होता है, ये तो रूट हेयर में तो हेयर्स के थ्रू होता है, ओल्ड रूट्स के अंदर लेंटिसेल्स भी हो सकते हैं एंड स्टेम में लेंटिसेल होते हैं। लीफ के अंदर क्या होता है, इन लीफ देर आर स्टोमेटा, यहाँ पे भी शो कर रखा है, आगे भी एक फिगर शो कर रखी है। पहले मैं आपको यही बता देता हूँ, यहाँ पे इन लीफ देर आर स्टोमेटा, ये स्टोमेटा शो कर रखे हैं, पोर्स होते हैं। परहैप्स यू हैव सीन थ्रू माइक्रोस्कोप, देखा भी हो आपने। एक्चुअल में क्या आउटर लेयर जो होती है, दैट आउटर लेयर एपिडर्मिस लेयर होती है एंड इस लेयर के नीचे लूज सेल्स होते हैं, विच ग्रीन सेल्स, मतलब जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है। ऑक्सीजन इज डिफ्यूज्ड इनसाइड द सेल थ्रू द स्टोमेटा and inside cell oxidation of food take place, carbon dioxide is released, process वही है same, and carbon dioxide then diffuse out through these pores, यानी कि stomata के through। when stomata opens then oxygen is diffused inside it because there is high concentration of oxygen in environmental air as compared to the inside of cell, and there is high concentration of carbon dioxide inside the cell as compared to environmental air. So oxygen diffuse inside it and carbon dioxide is diffused out. ये diffuse out हो जाती है, like that exchange of gases take place, and exchange of gases take place only when the stomata are open, जब open होते हैं। It is the system shown here, देखिए ये stomata है, ये 3D स्ट्रक्चर शो कर रखिए। दिस इज द आउटर लेयर, अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है जो ये ब्राउन कलर की शो कर रखी है। और आप देखिए लोअर एपिडर्मिस में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा में क्या होते हैं, गार्ड सेल होते हैं। दीज गार्ड सेल्स व्हेन स्वेल अप, वाटर उनके अंदर फिलअप हो जाता है, दे ओपन्स, बीच का गैप इंक्रीज हो जाता है और इसी गैप में से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। एक जगह से शो कर रखा है, ऑक्सीजन इज रिलीजिंग आउट, उसी में से ऑक्सीजन बाहर आती है, उसी में से कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, सेपरेट नहीं होते हैं। ये तो सिर्फ आपको इजी वे से शो करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। कब, फोटोसिंथेसिस में। और जब रेस्पिरेशन चल रही हो तो क्या होगा, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी थ्रू द स्टोमेटा, और इन्हीं स्टोमेटा से
वाटर की ट्रांसपिरेशन होती है। दीज आर द एक्चुअली लूज सेल्स, मेसोफिल सेल हैं ये सेल जो है, ये सेल्स प्रेजेंट है। और इन सेल के अंदर क्या होता है, मेनली क्लोरोफिल होता है, यहाँ पे मेनली फोटोसिंथेसिस होती है। और उसी फोटोसिंथेसिस के लिए शो किया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रही है और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। रेस्पिरेशन में करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। लाइक दैट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस थ्रू दीज स्टोमेटा, इन स्टोमेटा के थ्रू जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है। आप देखिए ये हैं, दीज आर स्टोमेटा, ओपन एंड क्लोज। ये बिल्कुल एक इसका लीफ का शो कर रखा है, दिस इज द स्टोमेटा। क्यों ओपन एंड क्लोज होते हैं पता है आपको? एक्चुअल में क्या होता है, इनमें सोल्ट्स होते हैं, मेनली पोटेशियम सोल्ट होता है। पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो उस टाइम पे इनको वाटर, पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से वो वाटर को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और वाटर इन गार्ड सेल के अंदर फिलअप हो जाता है। वाटर जो है इन गार्ड सेल में क्या हो जाता है, फिलअप हो जाता है। और ये क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाते हैं, फूल जाते हैं एक तरह से, एंड बीच का गैप इंक्रीज हो जाता है। स्टोमेटा ओपन्स। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, ये ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ऐसा चलता रहता है और रिलीज हो जाती है तो क्या हो जाएगा, वाटर स्क्वीज आउट हो जाता है, इसमें से बाहर निकल जाता है। दे गेट स्क्वीज्ड एंड स्टिक टू ईच अदर। स्टोमेटा जो है क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो लाइक दैट द एक्सचेंज ऑफ दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा टेक प्लेस। और जब ओपनिंग क्लोजिंग होती है तभी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं और तभी ट्रांसपीरेशन होता है। परहैप्स सफिशिएंट आज के लिए, काफ़ी इतना।